Students, today we are going to discuss about the importance of business environment. First of all, I want to say that actually I want to understand that why is it so important to take consideration about business environment. Means when we are going to study about management, the concept of management, the principles of management and techniques of management, then why this is going to be very important to take care or consideration about business environment. In previous lecture of business environment, we have taken that every business should scan the surroundings, internal environment as well as external environment. ये हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर्स रिलेटेड विद दिस पार्ट इज somehow in the situation of controlling by the business or by the management. बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसके डायमेंशंस या जो फैक्टर्स हैं, जिसमें इकोनॉमिक डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल और भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारे डायमेंशंस हैं या जो फैक्टर्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग को या ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं. तो why is it so important to discuss or to study about business environment? So the understanding and awareness of business environment is must for every businessman, as ignorance about business environment can throw the businessman out from the market. What does it mean? I actually want to elaborate these lines कि when business is going on, you are doing business and there are surroundings, there are certain forces, they want to squeeze your business, they want to make you kick out from the market. But a businessman or a business firm definitely want to stable, want to make progress and want to expand business. So it's a prime responsibility of a businessman or an entrepreneur to make a detailed study about what is happening outside of the business. और अगर ऐसा नहीं करेंगे डेफिनेटली मार्केट से आपको किक आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस तो हैं ही, इकोनॉमिकल कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पर कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. अब चाहे वो स्पेसिफिक फोर्स हो या वो जनरलाइज फोर्स हो. आपकी बुक के अंदर जो जनरलाइज फोर्सेस को डिस्कस किया है, स्पेसिफिक फोर्सेस भी होंगी जो सिर्फ आपके बिजनेस को टारगेट करेंगी, आपके बिजनेस को मार्केट से किक आउट करने की कोशिश करेंगी. सो द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस इज मस्ट. देन these kind of understanding and awareness about the business environment brings lots of benefits for the businessman, and these benefits are, now we are just taking a positive part of the scanning. When you are doing business and you are scanning continuously, and generally organization के अंदर we had a department called R&D department, research and development department, and the primary function of this department is to understand what is happening outside of the business before starting a project or launching a product. The R&D department must make a detailed study or detailing about the market conditions and the other factors also, राइट. तो वो रिपोर्ट बनाते हैं जिस पे फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. और नो डाउट स्कैनिंग के ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को या पॉजिटिव एटीट्यूड को या पॉजिटिव
हम सिर्फ एक परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को आप कंसीडर करते हो तो। ओके, फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। This is the first one. Identify opportunities and getting the first mover advantage. Second is identify threats and early warning signals. Third one is coping with rapid changes, tapping useful resources, helps in planning and policy formation. And the last one is not the last one. There are many more. बट आपके सिलेबस में दीज आर द इम्पॉर्टेंस वी हैव टू टेक अबाउट इन द नोट, राइट। तो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इस पे कुछ केस स्टडीज आपको मिलेंगे एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू मेक कि ये क्या इंपॉर्टेंस थी जो इस केस स्टडी में मेंशन की गई, राइट। सो हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लाइक आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट। तो ये क्या है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं तो आपको ये अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाएगा या फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट होने वाली हैं जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। मीन्स जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस या बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या थी, वो मोनोपोली क्रिएट करके रखती थी, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि इकोनॉमी को कैसे रिफॉर्म करना है। तो उस केस में ज़्यादातर जो भी एंटरप्राइजेस थी या बिजनेसमैन थी या मैनेजमेंट थी वो ज़्यादा रिलैक्स थी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया मार्केट के अंदर, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेटन्स आने लग गए तो मैनेजमेंट को उसके लिए फोकस करना पड़ा। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंपैरेटिवली एनालिसिस करते रहते हो, आप उसकी स्कैनिंग करते रहते हो, तो मार्केट में आने वाली आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो डेफिनेटली लेगा ही लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई एम टेकिंग हियर एन एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी लिमिटेड, राइट। मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स in an environment for rising petrol prices and large middle class population in India, so they became the leader in the small car market। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है व्हाट्सएप, हो सकता है फेसबुक, हो सकता है। तो व्हाट्सएप फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इंडिया में, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर भी वो सबसे पॉपुलर चैट ऐप है जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली है, जिसको ज़्यादातर लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं, राइट। सेकेंड इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसमें अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड देन इट बिकम थ्रेट्स। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं, जो अनसर्टनिटीज़ हैं, वो एकदम से नहीं आती हैं, राइट। उनमें से कुछ आपको हिंट मिलते रहते हैं और एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उसके टच में रहना, उसको फोकस करके रखना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करते रहना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में, और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में क्या होने वाला है या हो सकता है, अगर वो आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो नो डाउट आपको पहले से कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल या आपका थर्ड सेंस आपको बोल सकता है कि यार ये होने वाला थ्रेटन्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो उनको आप क्या कर सकते हो, आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंस है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आप डायमेंशंस को स्टडी करते रहते हो, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को, लीगल पॉलिसीज़ को, सोशल एनवायरनमेंट को, तो वो आपको पहले से थ्रेटन या वार्निंग सिग्नल्स आपको दे सकता है, जिससे आप कुछ अपना प्रिकॉशनल स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जांपल दे सकते हो? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको अभी जो नोटिफाई करने को मिलेगा वो सबसे बड़ा है कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर जो
बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें नो डाउट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं। आईटी या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं। तो जो कंपनीज इस थर्ड सेंस को पहले से सेंस कर लेती हैं कि यार नया प्रोडक्ट आने वाला है, कस्टमर या कंज्यूमर की डिमांड ऐसे फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है, उनके टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन लाइन को चेंज कर सकते हो। और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलने का मीनिंग यही है, ताकि आप उसको थ्रेटन में कन्वर्ट ना होने दो, राइट। मूविंग टू द थर्ड स्लाइड, हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जब आपने अर्ली वार्निंग सिग्नल रिसीव कर लिया, उसको थ्रेटन में अनसर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होने दिया, उन चेंजेस को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो उन रैपिड चेंजेस को, क्योंकि बिजनेस डायनामिक एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उन रैपिड चेंजेस को आप अडॉप्ट करो और उसको उनको एडजस्ट करने में आपको हेल्प मिल सकती है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, लाइक ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, राइट। तो कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट रैपिडली चेंज बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। तो उनके टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, तो उनकी अर्ली वार्निंग सिग्नल को रिसीव कर लो और रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये बेसिकली हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, क्योंकि बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, डायनामिक एनवायरनमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यहाँ पर टैप का मतलब ये है कि भैया अर्ली वार्निंग सिग्नल मिले, उन रैपिड चेंजेस को आपने अडॉप्ट कर लिया और अब एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने का मतलब ये है कि भैया आपको चेंजेस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा इनपुट, और इनपुट बाद में कन्वर्ट होगा किसमें, किसमें जल्दी बोलो, ये कन्वर्ट होगा आउटपुट में। तो इनपुट अरेंज करने का मतलब ये है कि आपको रॉ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, फाइनेंस, ये आपको सारा अरेंज करना पड़ेगा, लेबर भी अरेंज करनी पड़ेगी, पावर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, ये वो सारे, तो वो सारे इनपुट्स हैं। एंड व्हेन यू आर टैपिंग दीज रिसोर्सेज इन एडवांस, लाइक जब मार्केट के अंदर वो आपके पुराने CRT मॉनिटर्स और पुराने टीवी, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन जो है ना, वो किक आउट होना शुरू हुए, या फिर आपने पहले ये एज्यूम कर लिया, या आपका ये थर्ड आई या थर्ड सेंस बोल रहा था कि आने वाले टाइम में LED फ्लैट स्क्रीन, OLED OLVED आने वाली है, तो उसका प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा उसके लिए इनपुट, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, 5M 3M, तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा और वो इनपुट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। दैट इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो आप यूजफुल रिसोर्सेज को पहले अरेंज करो, देन आप उसको डिजायरेबल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। दिस कैन बी डन ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एनवायरनमेंट हैज टू ऑफर, राइट। अब मैंने सारी स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए मैच ही कर दी, वो एक बार हटा देता हूँ। ओके, लुक, environment is a source of various resources for running a business. All business enterprises collects inputs from the environment and supplies its output for the customers, और क्या बोल सकते हैं, consumers. Wow, very good, right? Okay, moving to the next slide. Helps in assisting in प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या मतलब, अब भैया बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने पड़ेंगे क्या क्या बनाने पड़ेंगे, प्लान्स। तो उसके लिए प्लान बनाने के लिए आपको एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पहले से फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे एजम्पशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन प्लान का या प्लानिंग का या स्ट्रैटेजी का जो बेस होगा वो क्या होगा, द चेंजेस,
द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बीई, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसको उसका बेस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बीई से, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। उससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी एंड यू कैन सर्वाइव इन द बेटर वे। तो हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Then the last one, helps in improving performance. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. How? By making changes in the internal environment matching to the external environment. This is going to be important. क्या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमें करना है चेंजेस, क्योंकि इसमें चेंजेस हो रहे हैं, किसमें? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं उसको फेस करने के लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, किसमें? इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर, या मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करो, आप अपने आप को रेडी रखो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन पावर को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, आप अपने पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करो, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो? इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से, या उसकी अंडरस्टैंडिंग करने से, या अवेयरनेस के उसको लेकर, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये शायद आपको याद रहेगा, लेकिन आई एक्चुअली वॉन्ट टू रिकॉल दैट कि देयर आर सर्टन फैक्टर्स, और वी कैन से द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो मेजर एनवायरनमेंट अपने को, जनरल एनवायरनमेंट अपने को जो डिस्कस करने हैं वो कौन से हैं? इकोनॉमिकल डायमेंशंस है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये फैक्टर फोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिजनेस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। तो इकोनॉमिकल है, देन है हमारे पास में कौन से? सोशल, देन है हमारे पास में क्या? टेक्नोलॉजिकल, देन हमारे पास में है पॉलिटिकल, एंड हमारे पास में है लीगल। तो ये आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये डायमेंशंस या फैक्टर्स या ये मेजर कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट आपको डिस्कस करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के अंदर। तो होपफुली आज वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू।